Hello students, welcome in the social science class. For the past 2 days we have started the history portion of the social science, and the very first chapter we are going through is French Revolution. So far we have discussed about the way society was divided into different classes and how the people rose in agitation. And now we are going to discuss today the outbreak of revolution. ये revolution जो है ये outbreak कैसे हुआ? Louis XVI had to increase taxes for the reasons you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. The States General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. तो लॉइस 16 जो कैंग था उसको इंक्रीज करने थे, टैक्स बढ़ाने थे। टैक्स जो हमने पहले ही पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा कि टैक्स बढ़ाने की वजह क्या थी कि ख़जाना खाली हो गया था ऑलरेडी, जंग की वजह से पैसा जो है खर्च हो गया था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा था, तो किंग को टैक्सेस जो है वो बढ़ाने ज़रूरी हो गए थे। और लेकिन फ्रांस में जो पुरानी जो रिजीम थी, ओल्ड रिजीम जो मोनार्क किंग की, उसमें किंग अपने आप जो है वो टैक्स नहीं चढ़ा सकता था, बल्कि उसको क्या करना था, स्टेट्स की जनरल मीटिंग बुलानी थी। और स्टेट्स में तमाम 3 स्टेट्स जो हैं, जो हमने कल की क्लास में देखे, जो लोगों के सेक्शन बने हुए थे, ठीक है, तो वो सारी स्टेट्स के लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हिस्सा लेते थे, और उसके बाद वो किंग के प्रपोज़ल को अप्रूव करते हैं और उसी तरीके से ये जो टैक्स जो है लगाए जाते थे। लेकिन ये अख्तियार जो है ये किंग के हाथ में ही रहा हमेशा कि ये मीटिंग कब बुलाई जाए। और ऐसी एक मीटिंग जो लास्ट टाइम हुई थी वो हुई थी 1614 में। On 5th of May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes. A resplendent, a resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third states had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had
brought with them. 5 मई 1799 को किंग लॉइस 16 ने क्या किया, मीटिंग बुलाई स्टेट्स जनरल की प्रपोजल टैक्स का पास करने के लिए, और वर्साइल्स में एक बड़ा हॉल जो था उसको प्रिपेयर किया डेलीगेट्स के लिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे और उनको सीटों पे बिठा दिया गया आमने सामने अपोजिट में, एक साइड से स्टेट फर्स्ट के, एक साइड से स्टेट सेकंड के, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। जो लोग बैठे हुए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, उनके पीछे उनको खड़ा कर दिया गया और पीजेंट्स और आर्टिशियंस और औरतों को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो ग्रीवियंसेस थे, उनकी जो मसाइल थे, वो कोई 40,000 लेटरों चिट्ठियों में लिखे हुए थे और वो रिप्रेजेंटेटिव लेके आए हुए थे। और ये थर्ड स्टेट के लोग जो थे इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुत ही पढ़े लिखे लोग। क्या होता है, वोटिंग इन द स्टेट्स जर्नल in the past had been counted according to the principle that each state had one vote. This time, too, Louis XVI was determined to continue the same practice. But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. तो वोटिंग का क्या असूल था वहाँ पे, वोटिंग वो वहाँ पे जब भी हुआ करती थी तो एक स्टेट का एक वोट माना जाता था। एक स्टेट का एक वोट माना जाता था। स्टेट 1 एक वोट, स्टेट 2 एक वोट और स्टेट 3 एक वोट। लॉइस 16 ने यही काम करना था और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि अब की बारी जो है वोटिंग दूसरे तरीके से करवाई जाए, नए तरीके से करवाई जाए, यानी हर मेंबर का एक वोट हो, सब लोगों का एक वोट हो, हर एक इंसान का जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट हो। और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था नया, जो फिलासफर रसियो की जैसे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी में दिया था। लेकिन किंग जो था उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और इसकी वजह से थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे असेंबली छोड़ के चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation, और उन्होंने अपने आप को मान लिया कि वो सारी फ्रांस के जो लोग हैं उनके बदले में बात कर रहे हैं। On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in ground of Versailles. वर्सल्स के ग्राउंड में एक टेनिस हॉल में 20 जून को वो लोग जमा हो गए। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abe Sais. Mirabeau was born in a noble family, but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles.
तो यहाँ पे जो लोग जमा हुए थर्ड स्टेट के, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को नेशनल असम्बली, और ये कसम खा ली कि वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए बनाएंगे जिससे मोनार्क का जो पावर है वो कम हो जाए। और इनको लीड कर रहे थे मर्राबियो और एब साइस जैसे लोग। मर्राबियो जो था वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था हालांकि, लेकिन वो इस बात को मान के चलता था कि जो फ्यूडल सिस्टम इसको हटा के हमने नया सिस्टम लाना है किसी हाल में। ही ब्रॉट आउट जर्नल एंड डिलीवर्ड पावर, उसने एक जर्नल भी लाया, पब्लिश किया, और जो वर्साइल्स में लोग जमा हुए थे वहाँ पे उनके सामने बहुत ज़ोरदार तकरीरें भी की। ये कुछ इमेजेस हैं हमारे उस टाइम के। Faced with the power of this revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. जब प्रेशर बढ़ गया बादशाह पे, किंग लुइस 16 पे, तो उसने नेशनल असम्बली को रिकॉग्नाइज कर लिया और ये मान लिया कि अब के बाद उसके पावर्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। और 4 अगस्त 1799 को असम्बली ने एक डिक्री पास की और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया, ऑब्लिगेशंस को एबॉलिश कर दिया। जो क्लर्गी के मेंबर थे फर्स्ट स्टेट के, उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो भी उनसे छीन लिए गए। जितना भी पुराना सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया गया और चर्च के पास जो लैंड थी वो कन्फिस्केटेड कर दी गई। और इस तरीके से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी दौलत गवर्नमेंट के पास आ गई, और ये बहुत दौलत जो थी ये तकरीबन 2 बिलियन livres थी। So this much is suffice for the day. Thank you.